Hello students, today we will start our poem 8 on the grasshopper and cricket. This is fine sonnet and symbolic poem in which the grasshopper is a symbol of hot summer and the cricket, cold winter. Every poet has been attracted towards the beauty of nature, and so has Keats been. He finds nature beautiful in all seasons, not excluding the hot summer and cold winter. He says that the earth is always singing. When the birds stop singing in the hot summer, finding cool place, we find the grasshopper singing and flying from hedge to hedge. He sings tirelessly, and when tired, rests beneath some wheat. And unlike the ant and the cricket, which tells us a story, this is a nature poem. In it, the grasshopper and cricket do not appear as character in a story, rather they act as symbols. Here they are working as symbols. Who are working symbols? Grasshopper and crickets. Each suggests something else. Read the poem and notice how the poetry of earth keeps on. Keeps on means continues on. कि कोई भी सिचुएशन आ जाती है, कोई भी सीज़न आ जाता है, चाहे हॉट समर सीज़न आ जाता है, चाहे कोल्ड विंटर सीजन आता है, लेकिन जो अर्थ की एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं रुकती, काम नहीं रुकते, कभी भी काम कंटिन्यू चलते रहते हैं. अगर हम अपने आप को वर्किंग में बिजी रखते हैं तो ना हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, ना ही हमें ज़्यादा सर्दी लगती है. And winter in a never ending song, who sings the song? The poetry of earth is never dead. Poetry of earth is never dead, matlab is never finished. The activities on the earth always continues. Activities on the earth always continues. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, our voice will run. When the summer season starts and all the birds are fainted. Fainted क्या होता है? जब हमारे अंदर पावर हमारी ख़त्म हो जाती है, हम बेहोश होने की सिचुएशन में आ जाते हैं. हमारा फेंट का मतलब क्या होता है? कलरलेस हो जाना. कलरलेस हम कब होते हैं? जब हमारा स्टेमिना ख़त्म हो जाता है. ऐसे ही जब बर्ड्स हैं ज़्यादा गर्मी होने के कारण बहुत परेशान है विद द हॉट सन एंड अपने आप को कहाँ छुपाने की कोशिश करते हैं, कहाँ ढूंढते हैं. एंड द बर्ड्स स्टार्ट टू फाइंड द ट्रीज वेयर दे कैन गेट रेस्ट इन देयर कूलिंग ट्रीज, की जहाँ वो ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ ट्रीज की कूलिंग में वो छिप सके. At that time also, when the strong summer season starts, a voice will run from hedge to hedge. Hedge क्या होता है? A row of bushes or plants. कि उस समय भी जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस समय भी a voice will run from hedge to hedge. Hedge का मतलब a row of bushes or plants. उस समय भी नेचर के अंदर एक आवाज़ चल रही होती है, गूंज रही होती है. About the new mown mead. न्यू माउंट मीड होता है फ्रेश ग्रास, जो घास अभी अभी रिसेंटली उगी है, फ्रेश ग्रास को बोलते हैं आप न्यू माउंट मीड मीन्स फ्रेश ग्रास. दैट इज द ग्रास होपर्स. हेयर ग्रास होपर्स, ही टेक्स द लीड. ही टेक्स द लीड मीन्स ग्रास होपर सिंग्स सॉन्ग in the summer morning, in the summer season also, in the summer luxury. He has never done with his delights, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant wheat. मीन्स उस समर सीजन के अंदर भी जो ग्रास होपर है वो ये रिप्रेजेंट करना चाहता है कि वो सिंबल क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, उस समर सीजन के अंदर भी जो नेचर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंटिन्यू चलती हैं. अगर वो नहीं चलेंगी तो हमारी लाइफ सरवाइव नहीं हो सकती. अगर सूरज निकलना बंद हो जाए सर्दी में तो हमारी लाइफ ही नहीं चल सकती. तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो नेचर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ये नहीं देखती कि समर सीज़न है या विंटर सीज़न है, वो कंटिन्यूटी चलती है. उस प्रकार से ह्यूमन बींग्स को भी अपने आप को काम में बिजी रखना चाहिए. जो काम उनके करने लायक है वो ये नहीं देखना चाहिए कि समर है अभी मुझसे नहीं हो रहा या विंटर है अभी मुझसे नहीं हो रहा.
when grasshoppers also does his activities properly, and when he feels tired, और जब वो थक जाता है, when he feels tired, at that time he takes rest at some beneath some pleasant weed, pleasant जहाँ हमें सुखद अनुभव मिलता है। वीड क्या होते हैं? अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उनके नीचे, प्लांट्स के नीचे फिर ग्रास ऊपर जो है वो रेस्ट करता है आफ्टर डूइंग सम एक्टिविटीज। मीन्स फर्स्टली वी हैव टू फिनिश आवर वर्क, आफ्टर फिनिशिंग आवर वर्क वी शुड टेक रेस्ट। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट स्टेंजा, the poetry of earth is ceasing never, poetry of earth is stopping never, never stops, the activities of nature are never stops on a lone winter evening, और इवन जो ठंडी शाम मतलब इन द विंटर सीजन के अंदर भी जो नेचर की एक्टिविटीज़ हैं वो कंटिन्यू चलती हैं। व्हेन द फ्रोस्ट, फ्रोस्ट क्या होती है? जब ये बर्फ़ जम जाती है, फोग होती है, फ्रीजिंग हैज़ रोट अ साइलेंस, ड्यू टू फ्रोस्ट साइलेंस इज कवर्ड इन द सराउंडिंग ऑफ नेचर। जैसे जैसे आप देखते हैं कि विंटर सीजन आता है तो शाम के समय सब अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं और स्ट्रीट्स के अंदर बाहर जो है ग्राउंड में बिल्कुल साइलेंस होती है। उस समय भी फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स, स्टोन देयर श्रिल्स मीन्स उस समय भी एक ब्यूटीफुल सॉन्ग की वॉइस हमें सुनाई देती है स्टोन से। इट सीम्स टू बी इंक्रीजिंग इन वार्मथ एवरी मोमेंट, और जब वो हमें वॉइस सुनाई देती है, जो वो किसकी वॉइस होती है? क्रिकेट की सिंगिंग होती है। क्रिकेट सिंगिंग के द्वारा अपनी बॉडी को वार्मथ प्राप्त करता है, मतलब वो गाकर अपनी बॉडी को गर्मी प्रदान करता है सर्दी के अंदर। ठीक है, क्रिकेट सॉन्ग्स इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, जैसे जैसे क्रिकेट सिंगिंग करता है, जैसे जैसे मतलब काम करते हुए गाना गा रहा है तो उसकी बॉडी के अंदर गर्मी आ रही है, वार्मथनेस आ रही है। एंड हाफ asleep human beings felt it to be grasshopper songs coming from grassy hills, और क्या कहना चाहते हैं कि seems to one in drowsiness half lost the grasshoppers among some grassy hills, जब human beings अपनी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, उस समय भी उनको ग्रास होपर्स की सिंगिंग की वॉइस कहाँ से आ रही है? ग्रासी हिल्स से, ग्रासी हिल से उनको ये आवाज़ें आ रही हैं। जब ह्यूमन बींग्स रेस्ट कर रहे हैं सर्दी में, उस समय भी जो नेचर की एक्टिविटीज़ हैं वो रुकती नहीं है। नेचर अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए ये नहीं देखता कि सर्दी है या गर्मी है, वो अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं। उस प्रकार से पोएट ये कहना चाहता है कि जो हमारे अर्थ के अंदर नेचर है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। द पोएट हेयर इज़ ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेचर ऑफ द ब्यूटी एंड ही ऑल्सो सजेस्ट्स टू बी active in all situations. Now I am discussing the rhyming scheme of this poem. This scheme has A B B A, A B B A, C D E, C D E। ये इसकी राइमिंग स्कीम है बेटे, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपको मैं एक्सरसाइज के साथ भेजूंगी। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, फर्स्ट है जैसे do question answers from the notes also. Discuss with your partner the following definition of a poem. A poem is made of words arranged in a beautiful order. These words, when read aloud with feeling, have a music and meaning of their own. ये questions हैं आपके। Very true. Poetry is different from prose, but because it अरेंजेस बेस्ट वर्ड्स इन अ म्यूजिकल ऑर्डर। क्यों? क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं पोइट्री के अंदर म्यूजिकल ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। हाउएवर अ पोएम बीइंग शॉर्ट, म्यूजिकल एंड इंटरेस्टिंग, इट रिमेंबर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब हम उसको सुनते हैं म्यूजिकल वे में तो वो काफ़ी लंबे पीरियड तक हमारे हार्ट और माइंड में सेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नोट मेड ऑफ वर्ड्स, व्हाट इज इट ऑफ सजेस्टेड इन द पोएम। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स इन ट्रीज एंड ग्रास होपर साउंड, दे सिंग जॉयफुली विदाउट अ लॉन्ग ब्रेक।
यहाँ पर चर्पिंग ऑफ बर्ड्स के बारे में बताया गया है एंड ग्रास होपर्स की साउंड के बारे में बताया गया है. फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग. द ग्रास होपर्स हैप्पीनेस नेवर कम्स टू एन एंड. ही हैज नेवर डन विद हिज डिलाइट. नेक्स्ट पार्ट है द क्रिकेट सॉन्ग हैज अ वार्मथ दैट नेवर डिक्रीजेस. द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर. Which word in the stanza 2 is opposite in the meaning to the first? Warmth. The poetry of earth continues round the year through a cycle of 2 seasons. Mention each with its representative voice. The 2 major seasons in a year are summer and winter. Both are rich in music. In summer, the representative voice is that of the birds and the grasshopper. In winter, the cricket is the prime singer. Rhyming scheme of the poem is A B B A A B B A C D E C D E. That's all for students today. Now you have to read the poem thoroughly from the test and you have to write and learn question answers of this poem also.